وہ کاٹ کے بگ گئے تو کاٹ تو دیے تھے تم نے، بات تو کی نہیں، کاٹ تو دیے تھے. اب میں ذرا پڑھوں گا تھوڑا وہ ابھی مجھے. ارے کیا کرے گا پڑھ کے؟ کون سا تجھے جنت سے جانا ہے؟ تو کیا جہنم میں جائے گا پڑھ کے؟ ابے کتنے جھوٹ بول بول کے لوگوں سے فتوے پوچھے گا؟ ارے تو جھوٹ تو بول ہی رہا ہے، تو جھوٹ تو بولا ہی ہے کہ میری امامت اس وجہ سے نہیں گئی ہے. کتنا جھوٹ بول رہا ہے تو. ارے مکۃ المکرمہ میں جو میں نے نماز جمعہ پڑھائی تو میں نے اس میں وضاحت کی تھی کہ جہاں سب بدعقیدہ امام ہوں، سنی صحیح العقیدہ کی کوئی مسجد نہ ہو اور وہاں پر جماعت کثیر موجود ہو تو کسی گھر میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے. میں نے تو اس میں اور احتیاط یہ کی کہ اس میں ظہر بھی پڑھی اور ظہر بھی پڑھائی لوگوں کو. دو جماعتیں پڑھائی تھی. اچھا یہ بتا، گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک. ارے امام اعظم کا مقلد ہے تو یا امام شافعی کا؟ اللہ حضرت نے لکھا ہے یہی احکام شریعت میں، جہاں گاؤں میں جمعہ ہو رہا بند نہ کیا جائے کہ امام شافعی کے نزدیک ہو جاتا ہے. ارے تو اس میں ظہر کی نماز کے فرض پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں اکیلے پڑھنے کا چاہ، اکیلے پڑھو، جماعت سے نہیں. خالی جمعہ پڑھو؟ نہیں جمعہ پڑھو ہو جائے گا گاؤں میں جمعہ؟ ظہر گاؤں میں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں، مصر اور فنائے مصر ہوتا ہے گاؤں. اکیلے پڑھ لو ظہر 4 رکعت. ارے مصر اور فنائے مصر کی جو شرط ہے نہیں، اکیلے ظہر جماعت سے نہیں ہوگی، ظہر جماعت سے نہیں ہوگی، نہیں تو دونوں نمازیں گڑبڑ ہو جائیں گی. دونوں جماعتیں غلط ہو جائیں گی. اگر دو جماعتیں کریں، جمعے کی الگ اور ظہر کی الگ، تو دونوں ہی گڑبڑ. تو دونوں ہی گڑبڑ. دونوں میں شک پایا گیا، دونوں میں شک ہو گیا کہ یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. کون سی کتاب میں؟ یا تو ظہر ہوئی یا جمعہ ہوا، شک ہو گیا. ابے شک الگ چیز ہوتی ہے، احتیاط الگ چیز کے ہوتی ہے. زمانے میں کبھی دو نمازیں نہیں ہوئی، ظہر اور جمعہ. مفتیان کے زمانے میں کبھی دو نمازیں نہیں ہوئی، ظہر اور جمعہ. احتیاط الگ ہوتا ہے اور شک الگ ہوتا ہے. بھی کبھی دو جماعتیں نہیں کروائیں کہ ظہر پڑھو پھر جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھو ظہر پڑھو، ایسا کبھی نہیں کروایا انہوں نے. چلو اگر جماعت سے بھی پڑھ لی تو تیرے نزدیک نمازیں دونوں ہی نہیں ہوئی. اچھا، کیا جمعے کے گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے تو کیا ظہر پڑھنا ضروری ہے جماعت سے؟ نہیں، جماعت سے ظہر پڑھنا ضروری ہے جس گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے. ظہر کی نماز اگر جماعت سے پڑھے تو افضل ہے، اگر تنہا پڑھ لے جب بھی نماز ہو جائے گی. نہیں تو کہاں پڑھتے ہیں؟ یہاں پر راجستھان میں کہیں نہیں پڑھتے. بالدڑا میں، بوجا کھیڑی میں پڑھتے ہیں. یوپی نہیں، بالدڑا میں بوجا کھیڑی میں کہیں بھی نہیں پڑھتے. نہ بالدڑا میں پڑھے نہ بوجا کھیڑی میں پڑھے. ارے یوپی میں بہت ساری جگہ پر پڑھتے ہیں. وہ بیوقوف لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، بیوقوف ہیں. اچھا تو ہی عقل مند ہے بس. دو جماعتیں پڑھیں گے، ایک ظہر کی ایک جمعے کی، ایک ہی وقت میں دو جماعتیں. اچھا یہ بتا کہ مسئلے کو توڑ مروڑ سے کیوں پوچھتا ہے؟ کیا مسئلہ توڑ مروڑ کے؟ اور کسی کو بھی عالم و مفتی اور محدث بنا دیتا. پوچھئے یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے سوال کر کے تھانہ، اگر کوئی شخص حج کرنے جائے اور وہاں ہر مسجد میں امام بدعقیدہ ہو تو وہ جمعہ کیسے پڑھے؟ بدعقیدوں کے پیچھے جمعہ پڑھے یا مطلب اپنی نماز الگ پڑھے؟ کیا بتایا تجھے مفتی مطیع الرحمان نے؟ کیا بتایا مفتی مطیع الرحمان نے؟ کیا بتایا تھا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ وہابی ہیں اور مشکوک ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے. تو انہوں نے جمعے کا کب بتایا؟ اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو کہاں پڑھے گا انسان؟ تو انہوں نے جمعہ کب بتایا کہ جمعہ پڑھو؟ ارے کہاں پڑھے گا؟ جمعہ کا سوال ہی کہاں کرا تو نے؟ یہ بتا کہ پھر جمعہ کہاں پڑھے گا انسان؟ تو پھر وہ تو کہتے قضا کر دو. ان کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی. ارے یہ مولوی تو کہتے قضا کر دو، وہاں پر نماز نہیں ہوگی، قضا کر دو، جمعہ قضا کر دو. قضا یہ تو فتویٰ دے رہا؟ ارے یہاں کے مولوی کہتے ہیں، میں تھوڑی. ارے کون سا مولوی؟ کس مولوی نے کہا؟ ایک مولوی کا نام بتا. کیا بتاؤں؟ یہ کہ وہاں مولویوں نے یہ کہا کہ جمعہ قضا کر دو، جمعہ پڑھو ہی بس. کس نے کہا؟ شمشاد کو لگا فون ابھی حال میں نمبر دوں 94 کسی کتاب میں لکھا ہوا بتا، کسی عالم کی تقریر بتا کہ کس عالم نے یہ کہا ہے کہ
وہاں جمعہ مت پڑھو. کون سے عالم نے کہا؟ ابھی حال میں بتا دوں، مجھے ابھی لگا رہا ہوں 05257. دیکھو اٹھا لے تو ٹھیک ہے. وہ بھی ابھی لگا نہیں ذرا میرے والے سے رک جاؤ. آدمی اگر کوئی بھی حج کرنے کے لیے گیا ہے اور وہاں مقیم ہے اور سارے امام بدعقیدہ ہیں مشتبہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو انسان وہاں پر اگر احتیاطاً جمعہ پڑھتا ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ کائے کو پڑھنا ہے جمعہ؟ پتہ نہیں کسے مفتی بنا کے پیش کر دیتا ہے. بتاؤ کہ جب وہاں پر جا رہے ہو جہاں پر حضرت علی رحمت و رضوان کی کتاب میں تجھے غلطی قرآن لگتی ہے. جہاں نازل ہوا ہے، جہاں سے اسلام آیا، وہاں کا آدمی مسلمان نہیں ہوگا تو کہاں مسلمان ہوگا؟ اچھا، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہاں ابو جہل نہیں تھا؟ اچھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہاں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا؟ تو کیا یہ ابو جہل ہے؟ امیہ بن خلف نہیں تھا؟ نہیں، ابو لہب ہے وہاں کے امام. ابھی کے امام ابو جہل ہے کیا؟ میرے اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ وہاں قرآن پاک نازل ہوا ہے. نہیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں قرآن، جہاں سے اسلام آیا، جہاں کی فضیلت حدیث شریف میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو. میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، جنت والوں کی زبان عربی ہوگی. یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں قرآن نازل ہوا وہاں کافر نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا عرب والوں سے 3 وجہ سے محبت کرو. ارے جو میں بتا رہا ہوں، وہ سوال میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، جنت والوں کی زبان عربی ہوگی، یہ حدیث پاک ہے. ارے تو نمبر ہے، اسی لیے تو تجھ سے بات کرنے کا پاگل ہے، بالکل احمق ہے. اللہ کے کہیں لے جاتا ہے، کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. میری روپ کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. ہر عالم تیری ذلت کرتا، تجھے ذلیل کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک روپ کے ذریعے سے. تو مسجد نبوی کا نام تو بالکل قریب میں ہے، بالکل قریب میں. ارے اس کا تو میں تجھے کتنی بار جواب دے چکا ہوں. جواب دے چکا ہوں. ایک بار ایک ہی چیز کا 36 بار تھوڑی جواب ایک بار یہ کنفرم بتا دو، کنفرم کہ مسجد نبوی کے امام کو تم مومن مانتے ہو کافر؟ بس اس کے بعد پھر نہیں پوچھا جاتا کافر مانتے ہو. جو مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جواب دیا ہے وہی میرا جواب ہے کہ ان کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے، ان کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب پر حسام الحرمین کا فتویٰ لگ جائے گا من شک فی کفری وعذابی کفر. جو ان کے کافر ہونے میں شک ہے وہ بھی کافر. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا یہ من شک کا، جو شک کرے تھی عذابی، ان کے عذاب میں وہ عذابی ہی فقط کفر، تو وہ بھی کافر. یہ ان کے لیے ہے جن 5 پر اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے فتویٰ کفر دیا ہے. علماء حرمین شرفین نے فتویٰ کفر دیا ہے، ان کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں نہیں. تو پھر جو ابھی موجود ہے یہ مسلمان ہیں، یہ امام مسلمان ہیں وہاں کے کعبے کے مسجد نبوی کے. جو مفتی مطیع الرحمان صاحب کا جواب ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگر امام کے مومن ہونے میں شبہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ان کے پیچھے بات ختم ہو گئی. پھر یہ حاجیوں کا کیا کیا جائے؟ جنازہ نکال دیا جائے ان کا جتنے نماز پڑھا جمعے کی سب کو کہہ دیا کہ کسی کی. میں نے تجھ سے رات ایک بات کہی تھی، ارے تو کون سا حج کرنے جا رہا ہے؟ ارے یہ نماز پڑھے گا ان کے پیچھے. تو نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے 40 دن کی نماز، تم نے تو یہ بھی کہا جس نے 40 دن کی نمازیں پڑھی ہیں سب دہرائیں، 200 نمازیں دہرائیں. بالکل دہرائیں، جب نماز نہیں ہوئی تو دہرائیں. تو پھر اب تو شک کر رہا، تو کافر مان رہا امام کو، کافر مان رہا. ارے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو جو نمازیں پڑھی وہ بیکار ہے. اچھا، جو مدینہ شریف میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی نہیں ہوئی؟ کن کی؟ وہ جو وہاں رہتے ہیں ان کی بھی نہیں ہوئی. وہاں جو سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہی نہیں. وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں. ان کی مسجدیں کہاں ہیں؟ وہ نام تو بتاؤ گے کہ ہوائی فائرنگ کے یہ مسجد ہے وہاں پر مکۃ المکرمہ میں ایک مدرسہ سولتیہ ہے، وہ سنیوں کا مدرسہ ہے. رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا ہے، وہاں تو سب دیوبند والوں کا ہولڈ ہے دیوبند والوں کا. وہاں ہماری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ ہم الگ نمازیں الگ پڑھتے ہیں، ہمارا مدرسہ اہل سنت و جماعت کا مدرسہ ہے. اچھا، مسجد ہے وہاں؟ کس کی؟ ان کی سنیوں کی مسجد ہے الگ سے، بریلوی ہے. ایسی بات ہوں گی مسجدیں، بالکل ہوں گی. ہوں گی کیا؟ بتاؤ نا، نام بتاؤ.
अब क्या मैं हर गली हर खित्ते में थोड़ी घूम गया हूँ। तुमने फिर जुमा अलग क्यों पढ़ा जब मस्जिदें थी सुन्नियों की? कहाँ पे तुमने होटल में जुमा क्यों पढ़ा? कहाँ है क्या नहीं। अब हम तो अजीजिया में रहते थे और वो लोग कहाँ रहते थे? वो तो देवबंद वालों का हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की के खलीफा थे। वो तो सोलत साहब तो कौन? वो सोलत ये जो मदरसा वो तो हाजी इमदादुल्लाह साहब के खलीफा थे। हाँ तो वो तो लोग तो सुन्नी है तो खलीफा देवबंद हमारे होटल में तो हाजी इमदादुल्लाह साहब के खलीफा, वो तो हाजी इमदादुल्लाह साहब के खलीफा थे। और जिन लोगों पे दम वाजिब हुआ था उनके पैसे हमने दिलवाए उन्हें कुर्बानी के लिए। और तुम्हारे जो दादा उस्ताद हैं वो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे, मुफ्ती वजीउद्दीन साहब रामपुरी। हैं? किसके दादा उस्ताद? तुम्हारे दादा उस्ताद है मुफ्ती शाहिद मियाँ के उस्ताद है मुफ्ती वजीउद्दीन साहब रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा तो क्या हो गया? वो तो मोमिन है ना, सुन्नी है मुफ्ती वजीउद्दीन साहब। आदमी जरा कितने लोगों के पास पढ़ता है, कुछ जरूरी है कि सब सुन्नी हो? तो क्या सुन्नी नहीं थे वजीउद्दीन साहब? अबे स्कूल में जने कितने लोगों के पास आदमी पढ़ता है तो वो क्या सब सुन्नी है क्या? तो क्या शक के बारे में शक करोगे? मुसलमान है शक के क्या? बारे में शक करोगे? ये भी शक करोगे कि साहब जामे अजहर वाले भी सुन्नी नहीं है, मक्का शरीफ वाले भी सुन्नी नहीं है, मदीना शरीफ वाले भी सुन्नी नहीं है। फिर काके लोग कैसे मुसलमान मानोगे? ये तो बताओ, कन्फर्म कैसे मुसलमान मानोगे? तेरे नजदीक तो अशरफ अली थानवी भी मुसलमान है, कासिम नानोद भी मुसलमान है, सलील अहमद अबेडवी भी मुसलमान है, रशीद अहमद गंगोही भी मुसलमान है और गुलाम अहमद कादियानी भी मुसलमान है। क्या कादियानी मुसलमान है तेरे नजदीक? नहीं, ये बता, क्या कासिम नाथी साहब ने कभी अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाया? कभी अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाया कासिम नाथी साहब ने? तो सभी मुसलमान है। काजी ने तो अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाया, लब्बे की अफ्तार के नारे लगवाए। अब मुझे खुशी होती है कि मैंने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा, फिरक़े ज़िंदगिया का बानी और मोजिद। फिरक़े ज़िंदगिया का बानी और मोजिद, सही नाम रखा है मैंने बिल्कुल। इनका मेन मकसद है कि आला हज़रत को मानो तो मुसलमानों, नहीं तो काफिर हो। ये है बरेलियों का अकीदा है, हकीकत बात मैं जो बता रहा हूँ ये कन्फर्म है कि इसके पीर ने रद्द किया है इसका इलियास का, लेकिन ये मानते हैं मुल्ला अजहर तो थोड़ा सोच तो कम से कम तो कोटा में आता था, स्टेज पे बैठता था, मानता है और स्वागत होता था। देखो आप तो खिताब कुर्सी पे बैठ के तकरीरें करता था, लेकिन ये नहीं मानेगा। आज तुम्हें पता नहीं कौन से गड्ढे में घूम दिया आपने, फिर भी तो नहीं सुन रहा। उस्ताद की बात, उस्ताद की बात। आज मतलब ये कि जिन्हें कौन से गड्ढे में हमने तुझे घूम दिया, कभी प्यार मुस्तफा फिर भी आधा मिनट पता नहीं। सुनाओ। अरे क्या सुना रहा है? अरे ये इलियास काजी के बारे में कह रहा है, नईकी इमामों के बीच आप अरे तो मैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में क्या बात कर रहा हूँ? तो क्या मानते हैं इलियास काजी को? क्या मानते? तूने अभी एक गुफ्तगू करते हुए कितना झूठ बोला। क्या बोला? वो कोई मौलाना यूसुफ मंजरी से जो तू बात कर रहा था, कितना झूठ बोला उससे कि वो तो दावत इस्लामी के बारे में ये मानता है और उसको ये मानता है और फलां को ये मानता है, फलां को ये मानता है और उसको देवबंदी मानता है, उसको काफिर मानता है। मैंने तो उससे कभी कहा कि मक्का और मदीना के जितने लोग हैं सब काफिर हैं? हाँ कसम खुदा की, और कह दे कि मैंने तो उससे कभी कहा हूँ। अच्छा तू कसम खुदा की कहा तो कह दे कि मैं काबे के इमाम को काफिर नहीं मानता। मैंने कब कहा काबे के इमाम को काफिर? जब काफिर नहीं मानता तो जुमा अलग क्यों पढ़ा? जब काफिर नहीं मानता अलग जुमा क्यों पढ़ा? अबे बेवकूफ, जुमा अलग पढ़ना अलग बात है, काफिर मानना अलग बात है। मैंने कब कहा काफिर? बता। तो जब काफिर नहीं था वो मुसलमान थे, जब वो मुसलमान है तो जुमा अलग क्यों पढ़ा? एक मिनट मेरी बात सुन, अब एक मिनट मेरी बात सुन। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ लो। सुन तो, अरे सुन तो, तूने उनसे ये कहा कि मक्का और मदीना के जितने लोग हैं उन सबको इदरीस रामपुरी काफिर मानता है। अगर वाकई मैंने ये लफ्ज कभी कहा है कि मक्के और मदीने में जितने लोग हैं सब काफिर हैं, या मक्के और मदीने के किसी आदमी को मैंने काफिर कहा हो?
तो तू मेरी एक क्लिप दिखा दे या एक बात भी दिखा दे। तूने कहा 40 दिन की नमाज धो रहा है, 40 दिन की नमाज धो रहा है तो काफिर झूठ मानना तो बोल हुआ। के अपनी 40 दिन आखिरत की क्यों नमाज खराब धो कर रहा रहा है? हो तो काफिर मानना ही तो अरे हुआ। तेरी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो गई। नहीं, जब क्यों तूने इतना कहा कि झूठ बोलता 40 है? दिन की नमाजें धो रहा हो उनके पीछे, तो काफिर मानना ही तो हुआ। अच्छा ये बता कि इतना झूठ बोल के तो क्या हासिल करना चाहता है? नहीं, ये बता, इतना झूठ बोल के नहीं, तू खुद तेरे कह रहा है कि नजदीक हाँ झूठ मैंने कहा बोलना, था 40 दिन की तेरे नमाज धो रहा हूँ। नजदीक झूठ तू बोलना खुद सही कह है रहा है कि क्या? हाँ मैंने कहा अल्लाह था 40 कुरान में दिन की फरमाता नमाजें है धो या रहा हूँ। तूने खुद कहा ये बात को। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए और ईमान अभी वालों तू ये अल्लाह भी से कह रहा डरो है कि उनके अकीदे इब्न और अब्दुल वहाब के सीधी नजदियों सच्ची के बात अकीदे बोलो। पे हैं, या इब्न हैं? अब्दुल वहाब के नजदीक, जाने क्या क्या कह रहा था कि उनके अकीदे ऐसे हैं वैसे हैं। तू ये बात, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तो एक बार भी ये दिखा दे कि मैंने कभी ये कहा हो कि मक्का और मदीने के लोग काफिर हैं। बता। नहीं, वहाँ के इमाम कब कहा तू? एक भी क्लिप में तो कुछ तो कितनी बता भी कि तेरी मैं मेरी उन्हें गुफ्तगू ये मुसलमान बताना। मानता हूँ या काफिर, दो में से एक बात बता। मैं तो मोमिन मानता हूँ। तूने तो मुफ्ती यूसुफ मंजरी से ये कहा कि मौलाना इदरीस रामपुरी जो है वो मक्का और मदीना के तमाम लोगों को काफिर मानता है। तू अगर इसको साबित कर दे तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। काफिर नहीं मानता। अरे तो कितना बड़ा पापी है, अरे कितना बड़ा पापी है अरे तो तू कहते मेरी ना कि समझ में नहीं आता कितना बड़ा झूठा है यार। मानता हूँ, ये तो कह दे वहाँ के इमामों को। ये बता मैंने कब कहा? अरे मैंने तो कब काफिर कहा उन्हें? कब कह रहा है कि वहाँ के इमामों को मैं मुसलमान मानता हूँ? ये भी कब कह रहा है? अरे वो तो मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके मुसलमान होने में शुबा है। तो जो उन्होंने कहा मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने, वही मैं कह रहा हूँ। और उनके शुबा होने की वजह से, उनके मुसलमान होने में शुबा होने की वजह से हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ना अलग बात है, काफिर मानना अलग बात है। उनको माना क्या जाए, काफिर या मुसलमान? अरे बेवकूफ, हम तो हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदों को भी काफिर नहीं कहते, क्या कहते? गुमराह कहते हैं, बददीन कहते हैं। अच्छा, काफिर नहीं कहते सबको। बददीन के माने बुरे दीन वाला। इसलिए अवाम को जो है, जो अवाम है उनमें से किसी पर भी हम कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, न कोई सुन्नी लगाता है। मगर ये तेरी जहालत है कि तू सरासर झूठ बोल के। वहाँ के इमामों को क्यों काफिर मानते हो तुम लोग? कहाँ के इमामों को काफिर मानते हैं? किसने कहा? किसने कहा मक्के और मदीने के इमाम काफिर? मैंने जुमा अलग पढ़ा, होटल में पढ़ा। अरे तो जुमा अलग पढ़ना क्या उससे उनको काफिर कहा क्या हमने? क्या हदीस में हुक्म नहीं है यार कि सल्लू कमा फासिकिन है? तो उन्होंने मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने क्या जवाब दिया? हाँ, तो उन्होंने कहा जुमा पढ़ सकते हैं अगर कहीं कोई। अरे कितना बड़ा झूठा है, जुमे को पढ़ सकते हैं। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि मतलब ये कि मक्का और मदीने के जो गैर मुकल्लिद वादी इमाम है उनके पीछे जुमा पढ़ सकते हैं, ये कहा उन्होंने ये कहा वहाबी हैं। मैंने कहा मुसलमान तो हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मुसलमान नहीं माना। उन्होंने भी मुसलमान नहीं माना। तो उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है? नहीं, उन्होंने मुसलमान कब माना? ना मुसलमान माना ना उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा उनके मुसलमान होने में शुबा है, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। शुबा किस बात का शुबा है? अरे उनके मुसलमान होने में शुबा है। किस वजह से है वो तो बताओ ना, कुछ वजह हो? उनके अकायद की वजह से। क्या है अकायद? जो भी गैर मुकल्लिद वादियों के अकायद बताओ, अगर ऐसे गलत होंगे तो मैं अभी हल काफिर कहूंगा। अरे तुझे तो देख ऐसा है, अगर उनके कुफरी अकायद होंगे तो मैं अभी हाल इसी ऑडियो में काफिर कहूंगा। बताओ उनके अकायद बताओ, उनके अकायद बताओ, कुफरी अकायद हो इमामों के, तो मैं अभी गैर मुकल्लिद और वहाबियों के अकीदे ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, न जाती न अताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। दो, और उनका अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म नहीं। तीन, वो ये मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे ही मानो जैसे कि आम इंसान को मानते हो, बस ये फर्क है कि उनके पास वही आती है। चार, और बहुत सारे अकीदे हैं उनके। हजरत इमाम हुसैन को वो बागी मानते हैं। अच्छा, पांच, और ये कहते हैं कि माने वो तो काफिर है कि वो आतंकवादी। जो बागी माने वो तो काफिर है, जो आतंकवादी माने वो काफिर है। बताओ अगर तो इमामों का यकीन है वहाँ के मक्के शरीफ मदीना शरीफ के इमामों का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बागी थे या आतंकवादी थे,
जैसा तुम कह रहे हो, फिर तो काफिर है। अरे ये तो गैर मुकल्लिदों का हाथ, तुमको यही किसी गैर मुकल्लिद को बुला के पूछ ले नहीं, वहाँ के इमाम क्या ऐसा कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बागी हैं, वहाँ के इमाम कहते हैं। तुम यजीद को हक पर मानते हो या इमाम हुसैन को हक पर मानते हो? कहेगा भी गैर मुकल्लिद वो ये कहेगा हजरत यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहेगा, खलीफतुल मुस्लिमीन कहेगा, अमीरुल मोमिनीन कहेगा। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? हर गैर मुकल्लिद, हर गैर मुकल्लिद, हर गैर मुकल्लिद कहता है। कहेगा तो मरदूद है, मरदूद कहा जाएगा। तूने तो आला हजरत की बातें सुनी है और क्या सुना है? आला हजरत ने लिखा है सफर 27 में जिल्द सोम में अम्बे किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। अरे ये तो घिसा पिटा सवाल हो गया। उलमा इकराम ने इसके तुझे खूब जवाब दे दिए, अब इसको रगड़ता है, उसका क्या है? नहीं, कैसे मुलाकात होती है? मुलाकात रूहानी होती है, जिस्मानी होती है? अरे ये सब घिसे पिटे सवाल है जो बहुत दिनों से कर रहा है, तो उसमें कुछ नहीं है। ये तो बताओ, रूहानी मुलाकात होती है जिस्मानी? अब मेरी बात सुन, जो तूने झूठ बोला उसका जवाब दे। मौलाना यूसुफ मंजरी से जो तूने झूठ बोला, ने लिखा है जो तूने कहा कि इदरीस रामपुरी ने होती है मक्का और मदीने के तमाम लोगों को काफिर कहा है, तो साबित करके दिखा दे। और अगर तू साबित नहीं कर सकता तो ये मान ले कि मैं दुनिया का जलील तरीन इंसान हूँ। नहीं पढ़ी, तुमने खुद इकरार किया है। नमाज ना पढ़ना किसी को काफिर कहना है क्या? मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, शुबे के बारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालों ज्यादा ख्यालों से बचो, इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, ज्यादा बेशक कुरान में बात ख्याल गुनाह है। तजस्सुस, जासूसी मत करो। तो बिल्कुल हक है। अब इमाम हरम के बारे में तुम जासूसी कर रहे हो, शक कर रहे हो, शुबा कर रहे हो कि काफिर होगा या मुशरिक होगा या मुसलमान होगा। ये तो शुभ करना, ये तो कुरान में मना है। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि मोमिनों के नजदीक अच्छा गुमान रखो। वहाबिया के जो अकीदे हैं, गैर मुकल्लिद वहाबिया के जो अकीदे हैं, उसकी बुनियाद पर उनका ईमान मशकूक है। तो कुछ बताओ तो सही कि ये क्लियर अकीदा इमाम हरम का है, मस्जिद नबवी के इमाम का अकीदा है। इतनी सारी चीजें मैंने सब बता दी, लेकिन तूने जो ये लफ्ज कहा कि इदरीस रामपुरी जो है मक्का मदीना के तमाम लोगों को मुसलमान नहीं मानता, ये तूने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, तो साबित करके बता। मुसलमान नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100% मुसलमान नहीं है। साबित करके बता। तूने मेरा नाम लिया है कि इदरीस रामपुरी ने कहा, साबित कर दूंगा। अरे साबित करके बता। 10 टिकट उम्रे के दूंगा मैं, 10 टिकट तेरे साथी कर ले, 10 में लेके चलूंगा। मेरा भी पासपोर्ट बन गया, 20-10 टिकट में दूंगा और आकर मैं गुलाम बनूंगा। अगर फतावा रज़विया से वहाँ के जितने भी रहने वाले, इमाम नहीं बल्कि जितने भी रहने वाले हैं, सबको फतावा रज़विया से इस्लाम से अभी फतावा रज़विया की बात नहीं हो रही है। अभी तो तूने जो सही झूठ बोला है, सुबह किसी का निकाह नहीं हो रहा पूरे अरब में, एक का भी निकाह नहीं हो रहा। झूठ बोला है, मदीना शरीफ में नहीं, पूरे अरब में एक का भी निकाह नहीं हो रहा। क्योंकि निकाह में गवाह का मुसलमान होना शर्त है। निकाह में गवाह का मुसलमान होना शर्त है। मक्के और मदीने के निकाह तमाम तो लोग काफिर हैं। गैर मुस्लिम पढ़ा सकता है, आला हज़रत ने लिखा है निकाह तो बामन भी पढ़ा सकता है, लेकिन गवाह तो मुसलमान होना जरूरी है। अब मक्का शरीफ में गवाह काफिर आओगे बरेलवी, वहाँ तो सब वहाबी गवाह बनते हैं, जिनको तुम वहाबी कहते हो। सब वहाबी है। अरे वहाँ पे बहुत सुन्नी है, बहुत सुन्नी है। मक्का शरीफ में भी, मदीना शरीफ में भी बहुत सुन्नी है। तो हो उनकी कोई मस्जिद तो हो नहीं, कहाँ है मस्जिद का? जब इमाम सुन्नी नहीं है तो वो सुन्नी कहाँ से हो जाएंगे? वहाँ के रहने वाले लोगों के घरों में, वहाँ लोगों के घरों में मिलाद शरीफ होते हैं, खत्मे कादरिया अरे कहाँ होते हैं, किस सारे प्रोग्राम होते हैं। वो बरेलवियों की तरह नहीं है, होते हैं, बरेलवियों की तरह नहीं है। अरे बरेलवी हो ना हो, सुन्नी है, सुन्नी बरेलवी नहीं है वो। सुन्नी तो हम भी है, सुन्नी तो देवबंद वाले भी हैं, सुन्नी तो नदवा वाले भी हैं, सुन्नी तो जामिया अशर वाले भी हैं। तो सुन्नी है, सुन्नी तो मतलब ये कि तेरे चेहरे सुन्नी है, खानकाह सौलतिया जो अरब में तो जिंदगी है और फिरका जिंदगिया का बानी है। फिरका इदरीसिया चला रहा तूने खुद कहा कि जिसने अहमद पटेल के लिए दुआ की वो उसने कुफ्र किया। जो कांग्रेस का लीडर था, कोटा में पूछना
मैंने कहा मौलाना सईद मुख्तार साहब से पूछ ले अरे किसने दुआ की थी। पर कितना मुफ्ती झूठा यामीन है साहब चंबल गार्डन वाले से पूछ ले कि कितना अहमद झूठा पटेल है। देवबंदी के लिए अल्लाह किसने कोटा में दुआ की है, किसने कुरान खानी की ये है। बता, मैंने मेरे ये दो कब के कहा नाम कि बता अहमद पटेल दिए के लिए जिसने मुफ्ती दुआ की यामीन वो साहब काफिर चंबल है? गार्डन, कब कहा बता। मौलाना सईद मुख्तार अबे साहब जो झूठे, सदर है यहाँ पर, अल्लाह उनसे पूछो कि अकबर, किसने दुआ की थी अहमद पटेल साहब के लिए यहाँ पर अबे कुरान खानी कितना किसने की थी। बड़ा झूठा, कितना बड़ा अहमद पापी पटेल आदमी है। कट्टर देवबंदी है, कट्टर अबे देवबंदी। ये बता, तेरे दिल में खुदा का खौफ रहा थोड़ा बहुत के नहीं रहा? नहीं, तूने खुद कहा कि जिसने अहमद पटेल के लिए दुआ की कुफ्र किया। मैंने कब कहा? ये मेरी रिकॉर्डिंग में तूने दिखा ये देगा कहा तू? कि देवबंदी के लिए अरे जिसने दुआ कितना की। बड़ा झूठा है वो, कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा पापी है ये तू। तूने कहा था ना कि मैंने ये कहा कि जो देवबंदी अपने अकीदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर है उसके लिए दुआए मगफिरत और बख्शिश करना कुफ्र है, ये कहा मैंने। ये कहा था ना। हाँ, तो अहमद पटेल तो वही था, देवबंदी था। अहमद पटेल तो देवबंदी था, गुजरात वाला जो कांग्रेस का लीडर तो था। कितना बड़ा झूठा है रे, कितना बड़ा झूठा है तो यार। वही हो रही है ना अहमद तो पटेल के लिए। पापियों का पापी महापापी है यार, तो कितना बड़ा झूठ है। सुबह से शाम तक कितने झूठ बोलता मैंने है। देवबंदियों के लिए कहा था, ये तो इकरार किया। हाँ, देवबंदियों, मैं हर देवबंदी के लिए नहीं, शर्त देख रहे उसमें क्या? जो देवबंदी अपने अकीदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर है हाँ। और उसके कुफर पर वाकिफ होकर जानबूझकर कोई उसके ये जाने कि हाँ इसके अकीदे कुफरिया हैं हाँ। और फिर उसके लिए बख्शिश की दुआ करे, वो है। अच्छा, जो देवबंदी वो अकायद नहीं जानते हो वो तो देवबंदी मुसलमान है। हाँ, वो देवबंदी मुसलमान है, उनको कौन काफिर कह रहा? ये लोग उनको भी काफिर कहते हैं। कौन कह रहा है? ये बहुत से कोई नहीं कह रहा, सब देवबंदी काफिर है, कोई नहीं कह रहा अहमद। अबे कोई नहीं कह रहा, तू बेवकूफ, तू अपनी आखिरत खराब कर रहा है झूठ बोल के। नमाज जनाजा सबने पढ़ी कोटा वालों ने। अबे झूठे कहीं के, अब फिर इधर आधे घुमाने लगा, तो सही से तो बात करता नहीं। अब ये तूने भी तो सुन्नी माना था काजी अनवर साहब को, तूने तेरी रिकॉर्डिंग आई थी, कौन करेगा? तेरी भी रिकॉर्डिंग आई थी कि काजी अनवर साहब की नमाज पढ़ सकते हैं, बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। वो तो भाग गया, लाइन पर बने रहे। आपका नाम The person you are speaking